بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان محترم اس وقت اپنے تخت پر براجمان تھے۔ وہ قاضی جو کچھ سلطان کو بتا رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ سلطان سوچ میں پڑ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ کیا تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ رات کے اندھیرے میں تم یہ تفتیش کرنے میں ناکام رہے ہو کہ تمہارے سامنے موجود چیز وہی ہے جو حقیقت میں بھی اپنا وجود رکھتی ہے یا پھر کچھ اور۔ مگر سلطان کی بات سن کر وہ قاضی کہنے لگا، سلطان محترم مجھے اپنے مرحوم والدین کی قسم، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک شخص کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، سلطان محترم اگر آپ کو پریشانی نہ ہو تو میں آپ کو یہ تھیلا کھول کر دکھا دوں۔ سلطان محترم نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ اس قاضی نے اپنے ساتھ آئے ہوئے غلام کو آگے بڑھ کر سلطان کے پاس جانے کا کہا۔ دربار میں اس وقت سلطان کے علاوہ وزیر، مشیر اور کچھ اور خاص طور پر حضرات بھی موجود تھے۔ جب سلطان محترم کے پاس وہ شخص پہنچا اور اس تھیلے کو کھول کر سامنے کیا تو جو چیز اس میں سلطان محترم نے دیکھی، اگلے ہی پل اپنا روح پھیر چکے تھے۔ زبان سے بے ساختہ استغفار نکلا تھا۔ سلطان کو اس قدر گھبرایا ہوا دیکھ کر وہاں پر کھڑے وزیر بھی بے چین سے ہو چکے تھے، گویا آگے بڑھ کر دیکھنا چاہتے ہوں کہ اس تھیلے میں کیا موجود ہے، لیکن تھیلے کو فوراً بند کر دیا گیا تھا۔ وہ شخص جو کہ اس کا عزیز کا غلام معلوم ہوتا تھا، اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس تھیلے کو دوبارہ سے بند کر کے واپس آ کر اس قاضی کے پاس کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ قاضی گہری گہری سانسیں خارج کرتا اکھڑتے ہوئے سانس کے ساتھ سلطان محترم کے قریب آیا اور پھر سر جھکا کر کہنے لگا، سلطان اب تو آپ کو یقین آ چکا ہوگا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور کوئی آخر کیا کرنا چاہتا ہے۔ پہلے پہل تو جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو مجھے لگا شاید کوئی سفلی عملیات کرنے والا ہے، کوئی کالا علم جانتا ہے جو اس طرح کی حرکات کر رہا ہے۔ لیکن جب میں اس طرح کے شکوک و شبہات سے نکل کر اپنے ذہن سے سوچنے لگا تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو کچھ تو مسئلہ ضرور ہے جو میرے گھر کے باہر یہ سب کچھ پیش آ رہا ہے۔ سلطان میں اس قدر پریشان ہو چکا ہوں کہ میری راتوں کی نیند اڑ چکی ہے۔ میں بے چین رہنے لگا ہوں، بلا وجہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اکھڑ کر پیش آتا ہوں۔ بعض دفعہ تو اپنی بیوی پر تشدد بھی کرنے لگتا ہوں۔ وہ اپنی تمام تر روزات سلطان کو سنا رہا تھا، جبکہ سلطان اس کی ساری بات سننے کے بعد اسے کہنے لگے، ٹھیک ہے تم فکر مت کرو، تمہارا مسئلہ بے حد پیچیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ وہ شخص میرے ہاتھ لگ جائے جو ان سب کا ذمہ دار ہے تو میں اس کا بھی یہی حشر کروں گا جو کچھ وہ کتنے ہی معصوم لوگوں کے ساتھ کر چکا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے قاضی کو وہاں سے جانے کا کہا، جبکہ وزیر سلطان کے قریب آ چکے تھے۔ کہنے لگے، سلطان آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس قاضی نے آپ کے کان کے پاس آ کر کیا کہا تھا؟ سلطان نے قہر بڑی نظر وزیر پر ڈالی اور اگلی پل کھڑے ہوئے وہ آگے آگے چل رہے تھے۔ دربار سے نکل کر وہ باغ میں آ چکے تھے اور وہی چہل قدمی کرنے لگے۔ دونوں وزیر سلطان کے ساتھ موجود تھے، 4 سپاہی بھی تھے جو ان کے ذرا فاصلے پر چل رہے تھے اور وزیر کو تمام تر معاملے سے آگاہ بھی کر رہے تھے۔ آج فجر کے وقت ہی سلطان محترم نے اپنا دربار لگا لیا تھا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد لوگوں کا دربار میں ایک تانتا سا بن چکا تھا۔ لوگ صبح صبح اپنے مسائل لے کر آ رہے تھے اور سلطان خوش اسلوبی سے ان کے مسائل حل کر رہے تھے کہ تبھی ایک شخص ہانپتا ہوا وہاں پر آیا۔ اس کی حالت انتہائی غیر لگ رہی تھی۔ درباریوں نے اسے روک لیا، اسے پوچھ گچھ کرنے لگے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کس لیے سلطان سے ملنا چاہتے ہو۔ اگر تمہارا مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہے تو بہتر ہے کہ عرضی لکھو اور وہ سلطان تک پہنچاؤ۔ لیکن وہ قاضی گھبرائے ہوئے کہنے لگا کہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے جو میں اس طرح کے مطالبے پورے کرتا پھروں۔ مجھے جلد از جلد سلطان سے ملاقات کرنی ہے۔ اگر سلطان سے ملاقات کرنے میں مجھے مزید تاخیر ہو گئی تو نہ جانے مزید کتنی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس کا اندازہ ایسا تھا پھر اس کا تعارف جب ہوا کہ وہ اسکلان کا رہنے والا ہے اور اسکلان میں بطور قاضی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے تو دربان فوراً معذرت کرتے ہوئے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ وہ قاضی تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھا تھا۔ پہلے تو اکھڑے اکھڑے سانس لے کر ہانپ رہا تھا، لیکن پھر اس کے وجود میں کپ کپاہٹ بھی آ چکی تھی۔ اس کے پیچھے اس کا ایک غلام بھی موجود تھا جس نے اپنے ہاتھ میں ایک تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ سلطان نے جب اسکلان کے قاضی کو اپنے سامنے دیکھا تو خوشگوار حیرت چہرے پر پھیل گئی۔ فرمانے لگے، آؤ آؤ، تمہیں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔
आओ तशरीफ़ रखो, खैरियत तो है। इतना सुनना था कि अस्कलान का काजी उखड़े हुए सांस लेने लगा, कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अगर खैरियत होती तो मैं कभी भी यूं हड़बड़ी में आपके दरबार में मत आता। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इतना कहने के बाद वो बगैर डरो हिचकिचाहट के जीने चढ़ता हुआ सुल्तान मोहतरम के तख्त के पास पहुंच गया, और तख्त के पास पहुंचने के बाद उसने आस पास नज़र दुराई। उस वक्त बहुत से दरबारी वज़ीर और मशीर मौजूद थे। उस सब को नज़रअंदाज करता हुआ सुल्तान मोहतरम के करीब झुक चुका था और फिर सारी बात कान में बताने लगा था, जिसकी वजह से बाकी लोगों से आधा मामला तो मख्फी रह चुका था। खासकर वज़ीर तो यही सोच रहे थे कि आखिर क्या था इस थैले में। उसे देखकर सुल्तान भी घबरा चुके थे, और ऐसी कौन सी बात थी जिसे अस्कलान के काजी ने सुल्तान के कान में बताया था, सबके सामने नहीं बताया था। वो शख्स सुल्तान के कान में कहने लगा, सुल्तान, आपके हुक्म पर मुझे अस्कलान का काजी बनाया गया था। सब कुछ अब तक ठीक चलता हुआ आ रहा था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से तो जैसे मेरी नींदें हराम होकर रह चुकी हैं। आप नहीं जानते मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। सुल्तान, मैं अपनी 2 जवान बेटियों और एक मजदूर बेटे के साथ घर में रहता हूँ। मेरी बीवी बड़ी नेक और मेरी फर्मा बरदार है। सारा दिन मेरा वक्त लोगों को इंसाफ दिलाने और उनके मामले सुलझाने में गुजर जाता है। उस रोज़ जब मैं रात को घर आया तो एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेरा हुआ था। मैं बार बार अपना हाथ अपने सीने पर मसल रहा था। मेरी बीवी ने जब मुझे घबराते हुए देखा तो मुझसे सवाल करने लगी, तो मैंने उसे ठंडा मशरूब लाने को कहा। कहने लगा, बस दिल पर एक अजीब सा बोझ सा महसूस हो रहा है। वो मेरे लिए ठंडा मशरूब बनाकर ले आई। मैं घूंट घूंट मशरूब पी ही रहा था कि तब तक मेरी बीवी नवाफिल में मसरूफ़ हो गई। मेरे बच्चे सो चुके थे और मैं अपने ध्यान में खिड़की के पास बैठा था। ठंडी हवा के झोंके मुझे सुकून मुयस्सर कर रहे थे। दिल में हल्की हल्की दर्द की ठीसें भी उठ रही थी कि जब मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी हो, या फिर कोई भारी कदमों के साथ मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हो। मुझे ये खौफ लाहिक हो गया कि कहीं कोई डाकू तो नहीं। मैं बड़ा गैरतमंद इंसान हूँ, मेरी 2 जवान बेटियाँ हैं, मैं किसी भी तरह का ख़तरा मोल नहीं ले सकता। अल्लाह ताला ने मुझे बेटा भी अता किया तो वो भी मजदूर। बस यही चाहता था कि अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी को उनके घर का करवा कर उन्हें रुखसत कर दूँ, ताकि मेरे बाद उनकी इज़्ज़त की हिफाजत हो सके। मैंने मशरूब का गिलास वहीं पर रखा और फिर चलता हुआ दरवाजे तक आ गया। जैसे दरवाज़ा खोला तो एक थैला मेरे कदमों में आकर गिरा था। ऐसे लग रहा था जैसे दरवाजे से टेक लगाकर कोई अपना सामान रख कर गया हो। दरवाज़ा खोलने पर वो थैला मेरे पैरों में गिर चुका था। सेहन में अंधेरा था, आज तो चांद भी बादलों की ओट में छुपा हुआ था। मैंने अपने पैरों पर कुछ गीला गीला महसूस किया। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पैरों पर नमी सी आ रही हो। जैसे मैंने उस थैले को हाथ से छुआ तो मुझे वो काफ़ी भारी लगा। मेरे हाथों पर भी नमी सी लग चुकी थी। जब मैंने अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने किया और उन पर गौर किया तो मुझे ये देखकर दचका सा लगा कि मेरे हाथों से तो खून की बू आ रही थी। सिर्फ बू ही नहीं, मेरी उंगलियां उनसे भरी हुई थी। उस थैले को देखकर मैं घबरा गया। जब मुझे बाहर खड़े हुए बहुत देर हो गई तो मेरी बीवी भी वहीं पर आ चुकी थी। उसने अपने हाथ में लालटेन उठा रखी थी। जैसी लालटेन हमने उस थैले पर लगाई तो उससे खून टपकता हुआ दिखाई दे रहा था। खून बहकर घर के बाहर तक जा रहा था। मैं घबरा सा गया। घर से बाहर निकलकर आसपास देखा, यहाँ तक कि गली के कोने तक भी गया, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। आखिर ये कौन था जो ये थैला मेरे घर के बाहर रख गया था? मैंने घबराते हुए जब उस थैले को देखा तो अंदर जो चीज़ मुझे दिखाई दी देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि उसमें तो इंसानों के कटे हुए अज़ा पड़े थे। ये थैला जिस वक्त मेरे सामने मौजूद था उसमें मर्दों के उंगलियां, हाथ और पैर कटे थे, जिनमें से अभी भी खून रिस रहा था। ये मंजर मेरे लिए इतना हौलनाक था कि मैं मजबूत हिसाब का मालिक होने के बावजूद घबरा सा गया। मुझे अपना सांस उखड़ता हुआ महसूस होने लगा। मैं सीने पर हाथ रखकर दूर जा गिरा। मेरी बीवी की चीख बड़ी मुश्किल से रुकी थी। अगर आधी रात को वो चीख पड़ती तो हमसाए भी उठकर आ जाते और यूं पूरे इलाके में ये बात फैल सकती थी। मैंने इन हाथों को और बाकी असाब को देखा तो घबरा सा गया। कितनी देर तो हम इंतज़ार करते रहे कि शायद कोई शख्स आए और उनको ले जाए, या फिर हमारे इलाके में ही इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है। मैंने उस थैले को उठाकर अपने घर में मिट्टी में दफन कर दिया कि सुबह शायद मेरे पास कोई इंसाफ मांगने के लिए आए या फिर कत्ल का किसी भी तरह का केस आए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 2 दिन तक मैंने इंतज़ार किया, लेकिन दूसरे दिन एक मरतबा फिर यही हुआ था। मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक होती या फिर मेरे घर की दीवार से ही कोई एक थैला अंदर फेंक जाता। जब मैं जाकर देखता तो इसमें मर्दों के कोई ना कोई कटे हुए अज़ा मौजूद होते। ये रुदाद वो काजी सुल्तान को सुना चुका था, लेकिन सुल्तान को यकीन नहीं आया था।
यही वजह थी कि वो एक थैला निकाल कर सुल्तान को भी दिखा चुका था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। सुल्तान के लिए ये मसला बड़ा ही पेचीदा था। वज़ीर भी ये सुनकर घबरा चुके थे। कौन था जो इंसानी अज़ा काट रहा था? और हैरत की बात तो ये थी कि कोई भी अभी तक काजी के पास या सुल्तान के पास शिकायत लेकर नहीं आया था। मज़ीद देर करना मुनासिब नहीं था। सुल्तान ने अस्कलान के उस काजी से राब्ता बहाल किया। फरमाने लगे कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी इस मसले को हम सुलझा लेंगे। बस तुम हिम्मत रखो और जिस कदर हो सके उस बात पर पर्दा डाल कर रखो। अगर ये बात आम आवाम तक पहुंच गई तो लोगों में खौफ व हरास बर्पा हो जाएगा और लोग डरने लगेंगे। काजी ने वादा कर लिया कि जैसे वो अब तक राज रखे हुए है आगे भी इस बात को राज रखेगा। लेकिन बस हाथ जोड़कर सुल्तान से इतना ही कह पाया कि सुल्तान, मेरी जवान जहाँ 2 बेटियाँ हैं, उनकी इज्जत से बढ़कर मेरी कोई चीज़ कीमती नहीं है। बस मेरी मदद फरमाइएगा। मैं भी अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मुझे तो ये डर लाहिक हो चुका है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मेरे घर में भी घुस आएँ और किसी रोज़ मेरे हाथ पाँव भी काट लें। बाज़ दफ़ा तो ख्वाब में भी देखता हूँ कि मेरे जिस्म के अज़ा कोई ऐसे थैले में डालकर फेंक रहा है। सुल्तान मोहतरम ये सुनकर घबरा से चुके थे। वो सोच चुके थे कि खुद अस्कलान जाएंगे और जाकर देखेंगे आखिर कौन शख्स है जो उस काजी के घर के बाहर ये जिस्मानी असाब काट कर फेंक जाता है। अगर हकीकत खुलकर सामने आएगी तो सिर्फ़ और सिर्फ इसी तरीके से आएगी, वरना इस मामले का भी हल नहीं हो पाएगा। सुल्तान ने अस्कलान जाने से पहले 2 रकत नमाज हजात अदा की। अल्लाह ताला के हजूर कितनी ही देर दुआएं करते रहे कि अल्लाह ताला पहले की तरह इस बार भी उन्हें मकसद में कामयाबी अता फरमाए। जैसे पहले सुल्तान ने हर मसला हल कर लिया था, लोगों को इंसाफ दिलाया था, इस मरतबा भी इनकी ये रीत कायम रहे। सुल्तान कितनी देर दुआएं करते रहे और फिर रब के हजूर सजदा रेज़ होने के बाद उठ खड़े हुए। वज़ीर और सिपाहियों ने सुल्तान के साथ जाने का सोच रखा था, मगर सुल्तान ने उनको साफ अल्फाज में कह दिया कि आगे का सफ़र मैं अकेले ही तय करूँगा, क्योंकि मैं सुल्तान बनकर नहीं बल्कि अस्कलान का एक आम शहरी बनकर जाऊँगा। इसके बाद सुल्तान ने अपना भेस बदला और फिर एक आम से घोड़े पर अस्कलान जाने के लिए रवाना हो गए। इस बात से वो काजी भी बेखबर था कि सुल्तान भेस बदल कर आ रहे हैं। सुल्तान का शुरू से ये मानना था कि वो किसी भी शख्स पर अंधा यकीन नहीं करते, बल्कि 2 तरफा कहानी को देखने के बाद ही फैसला किया करते थे। सुल्तान अपना भेस बदल चुके थे। जब तक वो अस्कलान पहुंचे और उस काजी के इलाके में पहुंचकर उन्होंने आसपास लोगों से छानबीन करके पूछा कि यहाँ के काजी का घर कहाँ पर है, तो लोगों ने उन्हें काजी के घर की निशानदही करने लगे थे। सुल्तान इस घर के बाहर पहुंच चुके थे। घोड़े को हरियाली वाली जगह पर एक जानिब को बांध दिया। तब तक रात भी हो चुकी थी। सुल्तान भेस बदले हुए थे और अपना चेहरा नकाब में ढक रखा था। एक ऐसी जगह पर जाकर बैठ के जहाँ से सुल्तान को वहाँ पर आने वाला हर शख्स वाज़ेह तौर पर दिखाई दे सकता था। सुल्तान छुप कर बैठे थे। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था जब एक जानिब से सियाह लिबास में मलबूस एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। वो अपनी धुन में यूं चलता हुआ आ रहा था गोया किसी चीज़ को उसे खौफ व ख़तर ही ना हो। उसने अपने हाथ में स्याह रंग का थैला उठा रखा था। वो थैला लेकर सीधा आगे बढ़ा, लेकिन ये देखकर सुल्तान चौंके क्योंकि वो बजाय काजी के घर के बाहर रुकने के आगे चला गया, एक गली में मुड़ गया और फिर कुछ देर बाद वापस उसी गली से आया था और फिर वो थैला काजी के घर के दरवाजे पर फेंक दिया। सुल्तान उसकी कहानी समझ चुके थे। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि अगर कोई शख्स वहाँ पर मौजूद भी है तो उसको चकमा दे सके। जैसे ही वो काजी के घर पर दस्तक देता, सुल्तान ने उसकी गर्दन दबोच ली। यूँ अपनी गर्दन पर गिरफ्त महसूस करके अगले पल उसने खुद को छुड़वाना चाहा, लेकिन सुल्तान उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे एक जानिब को ले जाने लगे। जानते थे कि वो शोर कर सकता था और यूँ लोग इकट्ठे हो जाते, जो कि अच्छा नहीं था। सुल्तान उसे पकड़कर वहाँ पर एक वीरान मकान में ले गए जहाँ पर किसी की रहाइश नहीं थी। वहाँ पर लाने के बाद सुल्तान उसके कान के करीब बोले कि किसी भी तरह का रद्द अमल देने से पहले ये बात जहन में रखना कि तुम इस वक्त महफूज हाथों में हो। इतना कहने के बाद सुल्तान ने जैसे उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा, उसके चेहरे से नकाब हटाया तो अगले पल सुल्तान हैरान हुए थे, क्योंकि सामने एक शख्स नहीं बल्कि इंतहाई हसीन लड़की सुल्तान मोहतरम के सामने थी। उसका कद बहुत लंबा था। कदकाठ में तो वो सुल्तान जितनी थी, लेकिन जिस तरह से उसने अपना हुलिया बना रखा था कोई भी पहचान नहीं सकता था कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है। इससे पहले कि वो अपनी मुट्ठी में मौजूद मट्टी सुल्तान पर फेंक कर वहाँ से भाग जाना चाहती, सुल्तान ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और अगले पल बुलंद आवाज में कहने लगे, खबरदार जो किसी भी तरह की चालाकी दिखाने की कोशिश की। इतना कहने के बाद सुल्तान अपने चेहरे से नकाब हटा चुके थे। सुल्तान का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखने के बाद उसकी रूह उठ चुकी थी। वो हैरत से सुल्तान को देखने लगी, कहने लगी, आप इस सल्तनत के सुल्तान हैं या फिर मुझे पहचानने में कुछ गलती हो रही है।
सुल्तान कहने लगे, तुमने ठीक पहचाना। मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम ये क्या कर रही थी? एक लड़की होकर ये सब कुछ करना, क्या तुम्हारे पीछे कोई और मौजूद है या फिर तुम ही कातिल हो? इस काजी के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? इस कदर सफाकियत का मुजाहरा कम अज़ कम एक लड़की से तो नहीं रखा जा सकता। कई तरह के सवालात हैं जो सुल्तान कर चुके हैं, लेकिन उस लड़की की आंखें बेतासुर थीं। उसके चेहरे से नफरत छलक रही थी। इंतहाई गुस्से से सुल्तान को देखकर कहने लगी कि क्या आप नहीं जानते कि इस काजी ने मेरे साथ क्या किया? ये सुनकर सुल्तान उससे दूर हुए। हैरत की बात यह थी कि ये लड़की इस कदर बदतमीजी से बोल रही थी। आज से पहले किसी ने भी सुल्तान के साथ इस कदर रुखे लहजे में बात नहीं की थी। अगर सुल्तान बेस बदल कर कहीं जाते और किसी पर ये राज आश्कार भी हो जाता, ये सुल्तान है, सर झुकाकर सुल्तान को सलाम किया करता था और फिर यही कहता था, सुल्तान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन ये लड़की तो इस कदर ढीठ थी कि बजाय सुल्तान के सामने सर झुकाकर माफ़ी मांगने के, उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रही थी। सुल्तान उससे कहने लगे, बताओ क्या कहना चाहती हो? इंसानी अज़ा काट कर रखने का आखिर मतलब क्या है? क्या तुम इस काजी को जानती हो? वो लड़की अपनी नज़रें झुका चुकी थी। झुकाकर कहने लगी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हकीकत से बिल्कुल ही अनजान हो, हकीकत आपको बिल्कुल पता ही ना हो। सुल्तान अगले पल अपने रोबदार लहजे में उसे कहने लगे, गुस्ताख लड़की, शायद तुम में अदब लिहाज बिल्कुल भी नहीं है। ये जानते हुए भी कि इस वक्त तुम्हारे सामने हाकिम वक्त मौजूद है, फिर भी बजाय हकीकत बताने के तुम बात को बदलने की नाकाम कोशिश कर रही हो। ये सुनकर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। फिर कहने लगी, सुल्तान, उस काजी ने जो कुछ किया है मैं सब कुछ आपको बताती हूँ। इतना कहने के बाद जो कुछ वो लड़की बोलने लगी, सुल्तान हरफ बहरफ सुन रहे थे। जिस पर उस लड़की के आंसू थे वो मुसलसल रो रही थी। जैसे जैसे वो अल्फाज अदा कर रही थी, आंखों से आंसू भी मुसलसल बहे जा रहे थे। जब वो खामोश हुई तो सुल्तान भी पल के झपक चुके थे। उन्हें तो अपनी समातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये काजी जिस पर इस कदर एतबार करके उन्होंने यहाँ पर मामूर किया था, वो यहाँ के लोगों के मसाइल सुलझाएगा, उन्हें इंसाफ दिलवाएगा, उनके साथ इस तरह का रवैया भी कर सकता है। सुल्तान ने उस लड़की को वहाँ से जाने का कहा और फिर खुद वो वहीं उस मकान में कितनी ही देर बैठे रह गए। हकीकत सुनकर तो सुल्तान का दिमाग घूम कर रह चुका था। उनके नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा था और वो सब इन बातों से बिल्कुल ही अनजान थे। अगली सुबह हुई तो सुल्तान उस काजी के घर मौजूद थे। दरवाजे के बाहर यूं ही वो थैला पड़ा था। काजी ने वो थैला देखा तो इस मर्तबा रोने लगा। रोते हुए सुल्तान के सामने थैला उलट दिया। कहने लगा, सुल्तान देखिए, इसमें एक मर्तबा फिर इंसानी अज़ा कटे पड़े हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? आखिर मैं कैसे इस मसले का हल करूं? कौन है जो मेरे घर के बाहर इंसानों के कटे हुए अज़ा रखकर चला जाता है? सुल्तान ने जब ये देखा तो एक गहरी सांस खारिज करके काजी को देखने लगे। कहने लगे, सोचो क्या तुमने कभी कुछ ऐसा गुनाह तो नहीं किया जिसकी बदौलत ये सब कुछ हो रहा है? ये सुनकर वो काजी कुछ सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, नहीं सुल्तान मोहतरम, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है। मेरे पास तो जो भी आया है मैंने सिद्दक़े दिल से खुदा को हाजिर नाजिर जानकर उसका मसला हल किया। सुल्तान ने उसे सोचने का कहा, लेकिन जब उसे कुछ भी याद ना आया तो सुल्तान उठे, काजी से कहने लगे कि आओ यहाँ पर दूर जंगल में सैर करने के लिए चलते हैं। काजी हैरान हुआ था कि यहाँ पर इतना बड़ा मसला सर उठा चुका है, इंसानों के कटे हुए अज़ा यहाँ पर मिल रहे हैं और सुल्तान को सैर करने की पड़ी है। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, लेकिन चौके सुल्तान को हुक्म था, इसलिए खामोशी से वो चलने लगा। जंगल में पहुंचकर कहने लगा, सुल्तान, इससे आगे जंगल काफ़ी घना हो जाता है, जंगली जानवरों के होने का भी खदशा है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन सुल्तान कहने लगे, नहीं, थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं। इस मर्तबा काजी थोड़ा बौखला सा गया। सुल्तान को ये कहने लगा कि मुझे यहाँ के रास्तों का कुछ ज़्यादा इल्म भी नहीं है, मुझे ये डर लगता है कि मैं रास्ता भटक ही ना जाऊँ। सुल्तान कहने लगा, कोई बात नहीं, हमारा रब हमारे साथ है, वो हमें सीधी राह दिखा देगा। इतना कहने के बाद सुल्तान अभी आगे बढ़े ही थे कि जब एक जानिब को दरख्तों को छोड़कर जब वो आगे गए तो उन्हें वहाँ पर एक बस्ती नज़र आई। सुल्तान ने उस बस्ती को देखा तो पलट कर उस काजी को देखने लगे। काजी नज़रें फेर चुका था। कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ये हम कहाँ चले आए? ये तो कोई अलग ही बस्ती मालूम होती है, न जाने यहाँ के लोग कैसे हैं, चलें यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन सुल्तान पीछे नहीं मुड़े थे, बल्कि उस बस्ती में दाखिल हो चुके थे। मजबूरन उस काजी को भी पीछे दाखिल होना पड़ा। वो बस्ती अजीब वीरानी का नमूना पेश कर रही थी। आसपास बिल्कुल यूँ खामोशी थी जैसे उस बस्ती में कोई रहता ही ना हो। एक वीरानी और उदासी उस बस्ती में फैली हुई थी। सुल्तान आगे आए तो एक जानिब कोई बच्चा घर के बाहर खामोश सा खड़ा दिखाई दिया। आमतौर पर तो बच्चे किसी भी बस्ती में मौजूद हो तो या तो मिलकर खेल रहे होते हैं या फिर उनके चेहरे पर
मुस्कुराहट तो लाजमी होती है, लेकिन ये बच्चा तो ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ खोकर यहाँ पर खड़ा अपनी किस्मत पर नोहा कना हो। सुल्तान अभी कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी एक औरत घर से बाहर निकली। जैसे ही उसकी नज़र सुल्तान पर पड़ी तो अगली पल घबरा सी गई। न जाने किसी आवाज़ देने लगी। उसकी आवाज़ पर उस छोटे से घर से एक लड़की और लड़का निकलकर बाहर आ चुके थे। ये वही लड़की थी जो कल रात सुल्तान को थैला रखते हुए दिखाई दी थी, लेकिन वो काजी इस बात से अनजान था। उस लड़की को देखने के बाद वो थोड़ा बौखलाया ज़रूर था। सुल्तान उनसे खैर आफियत जानने लगे, फिर उसे कहने लगे, हम तुम्हारी इस बस्ती की सैर करना चाहते हैं। इसके बाद सुल्तान उस पूरी बस्ती का चक्कर लगा रहे थे। लोग मुड़ मुड़ कर सुल्तान को देख रहे थे। कोई भी सुल्तान को सलाम तक देने के लिए आगे नहीं बढ़ा था, यहाँ तक कि लोग जान चुके थे कि ये सुल्तान है। जब लोगों पर यह राज खुला तो वो घबराकर अपने घरों में घुस गए, दरवाज़ा बंद कर लिया। इस डर की वजह क्या थी ये भी कल रात वो लड़की बता चुकी थी। कहने लगी, आज से कुछ माह पहले मैं अपने भाई के साथ बड़ी मुश्किलों से इस बस्ती से निकलकर काजी के पास आई थी। एक इंतहाई जालिम हाकिम है जो हमारी बस्ती का सरदार माना जाता है। वो हम पर बहुत जुल्म करता है। हमारी बस्ती में तो जिस भी लड़की के साथ उसका दिल चाहे वो उसे अपने बिस्तर पर बुला लेता है, लेकिन जब कोई इनकार करे तो उनके घर के मर्दों को मारता है। हर हफ्ते बाजार में पहुंच जाता है, सब लोगों से उनकी कमाई वसूल करता है। अगर कोई देने से इनकार करे या कम रकम दे तो वहीं पर उनका हाथ काट देता है। इसी हाकिम की शिकायत लेकर हम उस काजी के पास आए थे, लेकिन उस काजी ने यह कहकर हमें भेज दिया कि मुझे और भी बहुत काम है, मैं आप लोगों का मसला बाद में सुलझाऊंगा। हाकिम से काजी भी डरता था। एक काजी होता है जो हमें इंसाफ दिला सकता है। यहाँ तक कि हमने सुल्तान का भी बहुत नाम सुन रखा था। इसलिए जब एक रोज़ मेरी इज्जत पर हमला करने के लिए वो हाकिम आया और हमारे घर में बैठकर वो ना सिर्फ हमारे सामान की तोड़ फोड़ कर रहा था बल्कि मेरा सौदा कर रहा था, तो मैंने आपका नाम लेकर उसे डराना चाहा। लेकिन वो कहने लगा कि मुझे सुल्तान की तरफ से ये इख्तियारात मिले हैं कि मैं जिस लड़की के साथ चाहूँ ताल्लुक़ बनाऊँ, जो मर्जी करता फिरूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अस्कलान का वो काजी उसी दिन से हमारी नफ़रत का मरकज़ बन गया। ना सिर्फ अस्कलान के काजी से बल्कि सुल्तान से भी नफ़रत करने लगे हैं। वह हाकिम जुल्म व बर्बरियत की हद पार करता जा रहा है। अब तो ज़रा ज़रा सी बात पर वो लोगों के हाथ पांव काट देता है। हमारी बस्ती में तो मर्द बिल्कुल ही नापैद हो चुके हैं, जो बचे हैं वो भी खौफ से मजनून हो चुके हैं। सुल्तान के सामने जब ये हकीकत आई तो काजी पर बेहद ज़्यादा गुस्सा आया। तब वो उस काजी को यहाँ पर लेकर आए थे। आखिर को सुल्तान चलते चलते उस घर के पास भी आ गए जो कि उस बस्ती में सबसे अलग थलग और आलीशान था। वो घर उस हाकिम का था जो उस बस्ती का सरदार माना जाता था और बिला वजह ही लोगों पर हुक्मरानी जता रहा था। सुल्तान उस दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर वही हाकिम मौजूद था। कहने लगा, कौन हो तुम, किस लिए आए हो? अगली पल सुल्तान घर में दाखिल हुए और वो लड़की भी साथ ही थी। सुल्तान कहने लगे कि मैंने सुना है तुम यहाँ के लोगों पर जुल्म कर रहे हो। कोई तुम्हारी बात ना माने तो तुम उसके हाथ पैर काट देते हो, उसकी आंखें निकाल लेते हो। इतना सुनना था कि वो कहके लगाकर हंसने लगा। कहने लगा, बिल्कुल ठीक सुना है आपने, मैं ऐसा ही करता हूँ और ऐसा ही करता रहूँगा, क्योंकि सुल्तान की तरफ से मुझे खुली छूट दी गई है। इतना कहना था कि सुल्तान ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और एक जनाटेदार थप्पड़ उस शख्स के मुंह पर मार दिया जो गुज़श्ता कितने ही अरसे से यहाँ के लोगों पर सुल्तान का नाम लेकर जुल्म जबर कर रहा था, जबकि काजी भी उससे डरकर छुप कर बैठा था। बाकी सबके साथ इंसाफ पसंदी का मुजाहरा कर रहा था और उस शख्स के मामले में मुनाफिकत कर चुका था। अपने सामने सुल्तान को देखकर घबरा सा गया। बस्ती में जितने लोग थे वो इकट्ठे हो चुके थे। सुल्तान ने उस शख्स को वहीं पर बांधा और कहा कि मैं हाकिम वक्त होकर आप सबको हुक्म देता हूँ कि जिसका जैसे दिल करे इसे मारे। जिसने आपके सरपरस्तों के साथ जो कुछ किया आप भी इसके साथ वही करें। इसके बाद वहाँ पर कई लोग आए जो रो रहे थे, उसे बुरा भला कह रहे थे। कोई पत्थर उठाकर मार रहा था तो कोई नुकीली चीज़। यहाँ तक कि लोगों का तशद्दुद सहकर आखिरकार वो मौत की घाट उतर गया, जबकि वह काजी भी घबराया हुआ था। सुल्तान ने उसे मुअत्तल कर दिया और 10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी और ये भी फरमाया कि मेहनत करके ये काजी जो कुछ कमाएगा वो सारी रकम इन लोगों के घर में पहुंचाएगा जो इसके पास इंसाफ मांगने आते थे, लेकिन इनको इसने हाकिम के डर से इंसाफ ना दिया। इसी बस्ती में सुल्तान के चर्चे आम हो चुके थे। वो लड़की जो सुल्तान को बुरा भला समझ रही थी झुककर सुल्तान को सलाम करने लगी और अपने किए पर माफ़ी मांगने लगी, लेकिन सुल्तान ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे ढेरों दुआएं दी थी। सुल्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद हो रहे थे और सुल्तान एक मरतबा फिर एक मिसाल कायम कर चुके थे। दोस्तों, आज की इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और रोज़ाना एक नई सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।